नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज के बैंकिंग नॉलेज मास्टर क्लास 5 में हम आरबीआई के लेटेस्ट रूल्स और इम्पोर्टेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आरबीआई की पेनाल्टी फ्रेमवर्क से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the statutory framework governing the Reserve Bank of India's (RBI) authority to impose monetary penalties on primary, urban, cooperative banks. 1. The RBI exercises its power to impose monetary penalties on cooperative banks strictly under the provisions of Section 47A, 1, C, read with Sections 46, 4, I, and 56 of the Banking Regulation Act, 1949. 2. Any monetary penalty imposed by the RBI for regulatory non-compliance legally invalidates the underlying loan agreements or structural transactions entered into by the penalized cooperative bank with its customers. 3. Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, serves as the critical statutory bridge that explicitly extends the applicability of the parent banking legislation to cover cooperative societies. 4. The imposition of a monetary penalty by the regulator is considered final and strictly precludes any concurrent or future statutory or criminal proceedings against the bank's directors for the same violation. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 3. Option B. Only 2 and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 2 और 4 गलत है। चलिए इस कानूनी फ्रेमवर्क को डिटेल में समझते हैं। आरबीआई जब भी किसी यूसीबी यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पेनाल्टी लगाता है, तो वह बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 47(1)(c), जिसे सेक्शन 46(4)(i) और 56 के साथ पढ़ा जाता है, उसके तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि आरबीआई हमेशा यह स्पष्ट करता है कि यह पेनाल्टी सिर्फ नियमों के उल्लंघन के लिए है। इससे बैंक और ग्राहकों के बीच हुए पुराने लोन अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी वो वैलिड रहते हैं। स्टेटमेंट 3 सही है क्योंकि बीआर एक्ट का सेक्शन 56 ही वह अहम हिस्सा है जो इस पूरे बैंकिंग कानून को कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू करता है। अंत में स्टेटमेंट 4 गलत है। आरबीआई द्वारा लगाई गई पेनाल्टी अंतिम नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उस बैंक के डायरेक्टर्स पर कोई अन्य कानूनी या क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती। अन्य जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं। इसलिए एकमात्र सही उत्तर ऑप्शन ए है। आइए अब यूसीबी एक्सपोजर लिमिट्स और फेयर लेंडिंग कोड के प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज अंडरगोइंग अ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन। Based on RBI's master directions on exposure norms and fair lending practices, consider the following statements. 1. For a UCB maintaining total deposits above Rs 50 crore, the maximum permissible ceiling for sanctioning loans to any individual nominal member is strictly capped at Rs 1.00 lakh. 2.
If the UCB's total deposit base is exactly rupees 50 crore or below, the regulatory framework limits the maximum lending exposure to a nominal member to exactly rupees 50,000. 3. Under the Fair Practices Code, banks are permitted to levy penal charges on loan defaults, provided these charges are explicitly capitalized and compounded as part of the principal outstanding amount. 4. Whenever penal charges are levied on a borrower for non-compliance with material loan terms, the bank must explicitly communicate the exact levy and the specific reasons thereof to the customer. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1, 2, and 4. Option C. Only 2, 3, and 4. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए एक्सपोजर नॉर्म्स और फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस को गहराई से समझते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर किसी यूसीबी का कुल डिपॉजिट 50 करोड़ रुपए से अधिक है, तो वह किसी भी नॉमिनल मेंबर को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। वहीं अगर बैंक का डिपॉजिट बेस 50 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो यह लिमिट सख्त रूप से 50,000 रुपए तय की गई है। इससे स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है। अब फेयर लेंडिंग कोड की बात करते हैं। आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर कोई ग्राहक लोन चुकाने में डिफॉल्ट करता है, तो बैंक उस पर पीनल चार्जेस लगा सकता है। लेकिन इन पीनल चार्जेस को मूल लोन अमाउंट यानी प्रिंसिपल में जोड़कर उस पर अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जा सकता। इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ पीनल चार्जेस कहते हैं, जो सख्त मना है। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत है। अंत में स्टेटमेंट 4 सही है, क्योंकि बैंकों को पूरी पारदर्शिता बनाए रखनी होती है। उन्हें ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताना होता है कि उन पर कितना पीनल चार्ज लगा है और उसका कारण क्या है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक बेस ईयर रिविजन्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the recent macroeconomic base year revisions undertaken by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, in early 2026. 1. The base year for calculating India's gross domestic product, GDP, has been officially revised from the outdated 2011-12 benchmark to the new 2022-23 framework to better capture the post-pandemic digital economy. 2. Concurrently with the National Accounts Overhaul, the base year for the Consumer Price Index, CPI, has been updated to 2024 to reflect the latest household consumption patterns. 3. To maintain statistical alignment across the macroeconomic spectrum, the new Index of Industrial Production, IIP, series has also been completely synchronized to a base year of 2022 to 23. 4. This comprehensive statistical overhaul was structurally accelerated following a November 2025 assessment by the International Monetary Fund, IMF, which had assigned India's national accounts a C rating due to methodological weaknesses. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 3. Option B. Only 2 and 4. Option C. Only 1, 2, and 3. Option D. 1, 2,
3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। चलिए इस मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव को डिटेल में समझते हैं। मोस्पी ने जीडीपी बेस ईयर को पुराने 2011-12 से बदलकर नया 2022-23 कर दिया है। इससे पोस्ट पैंडेमिक डिजिटल इकोनॉमी को बेहतर तरीके से मापा जा सकेगा, इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। इसके साथ ही सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर भी अपडेट किया गया है। इसे अब 2024 कर दिया गया है। यह लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न को दिखाता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। वहीं आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी जीडीपी के साथ सिंक किया गया है। इसका नया बेस ईयर भी 2022-23 रखा गया है, इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इस बदलाव के मुख्य कारण की। नवंबर 2025 में आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया था। इसका कारण मेथोडोलॉजिकल कमजोरियां थी। इसी वजह से इस पूरे सिस्टम को तेजी से अपग्रेड किया गया, इसलिए स्टेटमेंट 4 भी सही है, जिससे ऑप्शन डी सही उत्तर साबित होता है। आइए अब नेशनल अकाउंट्स कैलकुलेशन के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। With the implementation of the new GDP base year 2020-23, several structural methodological updates have been integrated into the national accounts calculation. Consider the following statements. 1. The new framework strictly adopts double deflation, a method that separately adjusts input and output prices to measure real value added, effectively resolving historical price distortions in the manufacturing sector. 2. To prevent artificial statistical jumps and ensure short-term trends are preserved, quarterly GDP estimates will now be benchmarked to annual totals utilizing the proportional Denton method. 3. Under the revised national accounting structure, large-scale food subsidies have been explicitly reclassified and will now be strictly treated as transfers in kind rather than standard product subsidies. 4. The revised calculation methodology utilizes gross goods and services tax (GST) collections, inherently excluding the compensation cess, to establish the foundational indirect tax data. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 1 and 4. Option C. Only 2, 3, and 4. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इन मेथोडोलॉजिकल अपडेट्स को गहराई से समझते हैं। नए फ्रेमवर्क में डबल डिफ्लेशन मेथड को अपनाया गया है। यह इनपुट और आउटपुट प्राइसेस को अलग अलग एडजस्ट करता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने वाले प्राइस डिस्टॉर्शंस ठीक हो जाएंगे। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट्स को एनुअल टोटल्स के साथ अलाइन करने के लिए एक नई तकनीक लाई गई है। इसे प्रोपोर्शनल डेंटन मेथड कहा जाता है। यह डेटा में अचानक आने वाले उछाल को रोकता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। सबसे बड़ा बदलाव फूड सब्सिडी की अकाउंटिंग में हुआ है। इन्हें अ प्रोडक्ट सब्सिडी नहीं माना जाएगा। इसके बजाय इन्हें ट्रांसफर्स इन काइंड के रूप में क्लासिफाई किया गया है।
इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। नए कैलकुलेशन में ग्रॉस जीएसटी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बजाय नेट जीएसटी कलेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस नेट अमाउंट में कंपनसेशन सेस भी शामिल होता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है, जिससे ऑप्शन ए ही सही उत्तर बचता है। चलिए इंस्टीट्यूशनल एक्विजिशन रूल्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the Reserve Bank of India's (RBI) regulatory framework for the acquisition of shares or voting rights in private sector banks by non-promoter institutional investors. 1. Under the standard regulatory framework, the absolute ceiling for aggregate holding by a non-promoter institutional investor or mutual fund is strictly capped at 9.99% of the bank's paid-up share capital or voting rights. 2. Any major shareholding acquisition approved by the RBI must be completely executed within a strict timeframe of 1 year from the date of the regulatory approval letter. 3. If the institutional investor fails to complete the approved acquisition within the mandated 1-year window, the RBI approval automatically stands cancelled without the need for further regulatory notice. 4. Prior regulatory approval from the RBI is legally mandated only when an investor intends to acquire a stake of exactly 10% or more in a private sector bank. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2 and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इस इंस्टीट्यूशन एक्विजिशन फ्रेमवर्क को समझते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड या नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर के लिए एक लिमिट है। प्राइवेट बैंक में हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा 9.99% तय की गई है। ऐसा ओनरशिप कंसंट्रेशन रोकने के लिए किया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। जब भी आरबीआई ऐसी मंजूरी देता है तो इस एक्विजिशन को 1 साल के भीतर पूरा करना अनिवार्य होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अगर कोई इन्वेस्टर इस 1 साल की समय सीमा के भीतर अपना एक्विजिशन पूरा नहीं कर पाता है तो आरबीआई की मंजूरी अपने आप रद्द हो जाती है। इसके लिए किसी अलग नोटिस की जरूरत नहीं होती। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की गलती की। आरबीआई का नियम कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टर 5% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदना चाहता है तो उसे पहले से मंजूरी लेनी होगी। यह लिमिट 10% नहीं बल्कि 5% है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है, जिससे ऑप्शन ए सही उत्तर साबित होता है। आरबीआई की पेनाल्टी पुराने लोन अग्रीमेंट्स को इनवैलिड नहीं करती है। यूसीबी में नॉमिनल मेंबर्स की लेंडिंग लिमिट 50 करोड़ से ऊपर के बेस पर 1 लाख रुपए है। भारत की जीडीपी का नया बेस ईयर अब 2022-23 हो गया है। नए फ्रेमवर्क में फूड सब्सिडी को अब ट्रांसफर्स इन काइंड माना जाता है।
प्राइवेट बैंक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अधिकतम होल्डिंग लिमिट 9.99% है। आइए अगले सवाल में प्राइवेट बैंक्स के कंप्लायंस और एक्विजिशन रूल्स पर चर्चा करेंगे। आइए अब बैंक होल्डिंग और कंप्लायंस स्ट्रक्चर के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। A mutual fund company receives RBI approval to acquire a major stake in a private sector bank. Based on the Reserve Bank of India, commercial banks' acquisition and holding of shares or voting rights, directions, consider the following statements regarding compliance conditions. 1. The general regulatory mandate explicitly requires prior approval from the RBI for any investor intending to acquire an aggregate holding of 5% or more in a private sector bank. 2. If the approved entity's aggregate holding subsequently falls below the critical 5% floor at any point in time, the original regulatory approval remains perpetually valid for future acquisitions up to the previously approved limit. 3. In the event the investor's holding drops below 5%, the entity is strictly required to seek fresh prior approval from the RBI to increase its stake back to 5% or more. 4. The overarching acquisition and holding structures are structurally governed by the specific provisions outlined in the Reserve Bank of India, Commercial Banks Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights, Directions, 2025. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1, 3, and 4. Option C. Only 2, 3, and 4. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है, जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए आरबीआई के एक्विजिशन डायरेक्शंस को डिटेल में समझते हैं। नियम के मुताबिक अगर कोई भी इन्वेस्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक में 5% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, तो उसे प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब सबसे अहम नियम यानी 5% फ्लोर रूल को समझते हैं। अगर अप्रूवल मिलने के बाद इन्वेस्टर की हिस्सेदारी 5% से नीचे गिर जाती है, तो उसे दोबारा 5% या उससे ऊपर जाने के लिए फ्रेश अप्रूवल लेना ही होगा। इसका मतलब है कि पुरानी मंजूरी हमेशा के लिए वैलिड नहीं रहती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है और इसी वजह से स्टेटमेंट 3 पूरी तरह सही साबित होता है। यह पूरा सिस्टम और कंप्लायंस स्ट्रक्चर मुख्य रूप से संचालित होता है। इसे आरबीआई एक्विजिशन डायरेक्शंस 2025 के तहत रेगुलेट किया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 भी सही है, जिससे ऑप्शन बी ही एकमात्र सही उत्तर बचता है। चलिए सीबीडीसी डिजिटल फूड करेंसी से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) based digital food currency pilot launched by the Government of India in February 2026. 1. The pilot was officially inaugurated on 26 February 2026 in the Union Territory of Puducherry, specifically under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGK) framework. 2. Canara Bank serves as the primary designated banking partner, replacing conventional cash direct benefit transfers (DBT) directly with retail digital rupee (ER) tokens for beneficiaries. 3. The digital tokens are systematically integrated via the Public Financial Management System
PFMs, and are targeted for subsequent pilot rollouts in Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli. 4. The regulatory framework mandates the use of wholesale digital rupee (EW) tokens to transfer the food subsidy directly into the beneficiaries' conventional commercial savings bank accounts. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1, 2, and 3. Option C. Only 3 and 4. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इस डिजिटल पायलट प्रोजेक्ट को ध्यान से समझते हैं। भारत सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पुडुचेरी में एक नया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शुरू किया गया है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इस पहल के लिए केनरा बैंक को मुख्य बैंकिंग पार्टनर बनाया गया है। यह सिस्टम पुराने DBT सिस्टम को बदलकर रिटेल CBDC टोकन्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। इन डिजिटल टोकन्स को PFMS के जरिए इंटीग्रेट किया गया है। भविष्य में इसे चंडीगढ़ और दादरा एंड नगर हवेली में भी लागू करने की योजना है। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। इस स्कीम के लिए केवल रिटेल CBDC का इस्तेमाल होता है, जिसे डिजिटल वॉलेट्स में भेजा जाता है। इसमें होलसेल CBDC का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है और ना ही इसे नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है, जिससे ऑप्शन बी सही उत्तर बचता है। आइए अब प्रोग्रामेबल CBDC मैकेनिज्म के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। A beneficiary under the PMGK scheme in Puducherry receives their food subsidy via the newly launched CBDC digital food currency. Based on the programmable mechanics of this retail digital rupee, ER, consider the following statements. 1. The transferred CBDC tokens are strictly purpose-bound, possessing a hard-coded mathematical restriction that exclusively permits redemption at authorized fair price shops, FPS, for purchasing entitled food grains. 2. If the beneficiary attempts to utilize the purpose-bound digital tokens for non-essential purchases such as mobile recharges or clothing at unauthorized merchant outlets, the transaction will automatically fail. 3. The programmable tokens permit limited peer-to-peer (P2P) transfers, allowing the primary beneficiary to legally transfer the food currency to a registered family member's CBDC wallet. 4. To bypass existing public distribution system (PDS) biometric and connectivity failures, the framework incorporates offline and feature phone compatibility mechanisms like SMS-based voucher codes. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1, 2, and 4. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2, 3, and 4. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए,
यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इस प्रोग्रामेबल सीबीडीसी की वर्किंग को डिटेल में समझते हैं। ये डिजिटल टोकन्स पर्पस बाउंड होते हैं, यानी इनमें एक हार्ड कोडेड गणितीय पाबंदी होती है। इन्हें सिर्फ ऑथराइज्ड फेयर प्राइस शॉप्स पर ही अनाज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अगर कोई लाभार्थी इस पैसे से मोबाइल रिचार्ज या कपड़े खरीदने की कोशिश करता है, तो यह ट्रांजैक्शन अपने आप फेल हो जाएगा क्योंकि यह गैर जरूरी खर्चों के लिए नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। सिस्टम के ईपॉस कनेक्टिविटी फेलियर जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक खास सुविधा दी गई है। इसमें ऑफलाइन और फीचर फोन के जरिए भी एसएमएस वाउचर कोड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह सही है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। इन टोकन्स को पीयर टू पीयर यानी परिवार के किसी अन्य सदस्य के वॉलेट में ट्रांसफर करना सख्त मना है और ना ही इन्हें एटीएम से कैश के रूप में निकाला जा सकता है। यह सख्त रोक सब्सिडी लीकेज को रोकने के लिए लगाई गई है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, जिससे सही उत्तर ऑप्शन ए बनता है। चलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक के ट्रांजिशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the core financial eligibility criteria for the voluntary transition of small finance banks to universal banks. 1. The small finance bank must hold scheduled commercial bank status and possess a satisfactory performance track record for a minimum of 5 years. 2. The minimum audited net worth requirement for the transitioning bank is strictly mandated at rupees 1,000 crore as at the end of the previous quarter. 3. The shares of the transitioning bank must be mandatorily listed on a recognized stock exchange prior to application. 4. The bank must have consistently reported a net profit in each of the last 3 consecutive financial years. Which of the statements given above is are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इसे बहुत ही डिटेल में समझते हैं। रिजर्व बैंक के अप्रैल 2024 के सर्कुलर के अनुसार किसी भी एसएफबी को यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए कम से कम 5 साल का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होगा। यह बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। इसके अलावा बैंक का मिनिमम नेट वर्थ 1,000 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। यह डेटा पिछले क्वार्टर के अंत तक ऑडिटेड होना चाहिए। पहले यह लिमिट सिर्फ 500 करोड़ रुपए थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। साथ ही बैंक के शेयर्स का शेयर बाजार में लिस्टेड होना बहुत जरूरी है। बिना लिस्टिंग के बैंक अप्लाई नहीं कर सकता। इससे स्टेटमेंट 3 सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। आरबीआई के नियमों के तहत बैंक को पिछले 3 नहीं, बल्कि सिर्फ पिछले 2 वित्तीय वर्षों में नेट प्रॉफिट दर्ज करना अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। यह पूरी प्रक्रिया वॉलंटरी ट्रांजिशन कहलाती है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी लाना है। इससे डिपॉजिटर्स का भरोसा बढ़ता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन सुनिश्चित होता है।
आइए अब एसेट क्वालिटी और कैपिटल एडिक्वेसी मैंडेट्स के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एसेट क्वालिटी एंड कैपिटल एडिक्वेसी मैंडेट्स फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रांजिशनिंग इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। 1. The gross non-performing assets must be strictly less than or equal to 3% for the last 2 financial years. 2. The net non-performing assets must be maintained at less than or equal to 1% for the last 2 financial years. 3. The transitioning bank must meet a minimum capital to risk weighted assets ratio of 15% on a continuous basis. 4. The Reserve Bank of India strictly mandates that eligible banks must transition 100% of their microfinance portfolio to corporate loans. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इन वित्तीय पैमानों को ध्यान से समझते हैं। रिजर्व बैंक ने एसेट क्वालिटी के लिए बहुत सख्त नियम बनाए हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी जीएनपीए 3% या उससे कम होना चाहिए। यह लिमिट पिछले 2 वित्तीय वर्षों के लिए लागू होती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इसी तरह नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनएनपीए 1% या उससे कम होना अनिवार्य है। इसी सख्त नियम के कारण जना एसएफबी का एप्लीकेशन अमान्य कर दिया गया था, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। कैपिटल मेंटेनेंस के लिए बैंक को सीआरएआर यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो को न्यूनतम 15% पर लगातार बनाए रखना होगा। यह एसएफबी के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इससे स्टेटमेंट 3 सही साबित होता है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। रिजर्व बैंक ऐसा कोई नियम नहीं लगाता कि माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो को पूरी तरह से कॉर्पोरेट लोन में बदलना होगा। इसके बजाय आरबीआई उन बैंकों को प्राथमिकता देता है जिनका लोन पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो, इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए प्रमोटर गाइडलाइंस और शेयर होल्डिंग से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रमोटर गाइडलाइंस एंड शेयर होल्डिंग लॉक-इन मैकेनिक्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज। 1. There is a strict mandatory requirement for an eligible bank to officially identify a new promoter prior to initiating the transition. 2. The addition of new promoters or any changes to existing promoters is strictly prohibited during the entire transition phase. 3. The Reserve Bank imposes a new mandatory 5-year lock-in requirement for minimum shareholding for existing promoters upon transition. 4. The existing promoter shareholding dilution plan, as previously approved by the regulator, cannot be altered or delayed during the transition. Which of the statements given above are correct? Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C.
1, 2, and 4 only. Option D. 2, 3, and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 4 सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 1 और 3 गलत हैं। चलिए प्रमोटर नियमों को विस्तार से समझते हैं। अप्रैल 2024 की गाइडलाइंस साफ कहती है कि किसी भी पात्र बैंक के लिए नए प्रमोटर की पहचान करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। हालांकि अगर बैंक में मौजूदा प्रमोटर हैं, तो वे ही आगे बने रहेंगे। ट्रांजिशन के दौरान नए प्रमोटर जोड़ना या पुराने प्रमोटर्स में बदलाव करना पूरी तरह से वर्जित है। इससे स्टेटमेंट 2 सही साबित होता है। एक बहुत बड़ी राहत यह दी गई है कि रिजर्व बैंक ने मौजूदा प्रमोटर्स पर 5 साल का कोई नया अनिवार्य शेयर होल्डिंग लॉक इन नहीं लगाया है। यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद यह नई पाबंदी लागू नहीं होगी, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अंत में मौजूदा प्रमोटर शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन प्लान, जिसे आरबीआई ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, उसे किसी भी हालत में बदला या टाला नहीं जा सकता। वह प्लान अपनी तय टाइमलाइन के हिसाब से ही चलेगा, इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह सही है। यह सुनिश्चित करता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में निरंतरता बनी रहे। चलिए इस केस स्टडी के जरिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। Scenario: Our small finance bank recently became the first bank in India to receive in principle approval to transition into a universal bank. Based on regulatory guidelines regarding corporate structure and regulatory arbitrage upon transition, consider the following statements. 1. The transitioning bank is immediately exempted from the non-operative financial holding company structure regardless of establishing new group entities. 2. The regulator holds discretionary power to relax the non-operative financial holding company requirements unless the bank establishes additional financial group entities. 3. Upon successful transition, the mandatory priority sector lending target for the bank drops from the 75% mandate to the 40% mandate. 4. The transition legally removes the strict mandate requiring 50% of the bank's loan portfolio to consist of ticket sizes up to Rs 25 lakh. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1 and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2, 3 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 1 गलत है। चलिए इस महत्वपूर्ण केस स्टडी को समझते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मामले में रिजर्व बैंक ने नियमों को साफ किया है। कोई भी बैंक अपने आप एनओएफएचसी स्ट्रक्चर से मुक्त नहीं होता। नियम के अनुसार 2016 की गाइडलाइंस लागू होती हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। हालांकि आरबीआई के पास यह विवेकाधीन शक्ति है कि वह इस नियम में छूट दे सकता है। यह छूट तभी मिलती है जब प्रमोटर या बैंक कोई नई वित्तीय ग्रुप एंटिटी नहीं बनाते। इसी आधार पर एयू बैंक को छूट मिली थी, इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। ट्रांजिशन के बाद सबसे बड़ा फायदा रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का होता है।
एसएफबी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल का टारगेट 75% होता है। यूनिवर्सल बैंक बनते ही यह टारगेट घटकर सिर्फ 40% रह जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। इसके साथ ही एसएफबी पर एक सख्त नियम होता है कि उनके लोन पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा 25 लाख रुपए तक के छोटे लोन का होना चाहिए। यूनिवर्सल बैंक बनने पर यह पाबंदी कानूनी रूप से हट जाती है। इससे स्टेटमेंट 4 भी सही साबित होता है। यह बदलाव बैंक को बड़े लोन बांटने में बहुत मदद करता है। चलिए बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the fundamental mechanics and macroeconomic drivers of the credit deposit ratio in the Indian banking system. 1. The credit deposit ratio is mathematically derived as the percentage of a bank's total advances to its total deposits, with the Reserve Bank of India traditionally viewing a 70% to 75% range as a comfortable liquidity buffer. 2. A systemic credit deposit ratio persistently crossing the 80% threshold serves as a critical indicator that aggressive credit deployment is outstripping retail deposit mobilization. 3. The recent widening of the credit deposit gap is structurally driven by the diversion of household savings from traditional bank deposits into higher-yielding capital market instruments like mutual funds. 4. To mathematically correct a credit deposit ratio exceeding 82%, the Reserve Bank of India strictly mandates commercial banks to instantly freeze all new corporate loan disbursals. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इसके मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का फॉर्मूला टोटल एडवांसेस को टोटल डिपॉजिट से डिवाइड करके निकाला जाता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 70 से 75% का रेशियो एक सुरक्षित लिक्विडिटी बफर माना जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। अगर यह रेशियो 80% यानी 4/5 की सीमा को पार कर जाए, तो यह स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिस्क का बड़ा संकेत देता है। इसका मतलब है कि बैंक बहुत आक्रामक तरीके से लोन बांट रहे हैं, जो रिटेल डिपॉजिट्स की तुलना में बहुत तेज है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। इस गैप का सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक कारण यह है कि घरेलू बचत अब पारंपरिक बैंक डिपॉजिट से निकलकर कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड्स जैसी हाई यील्ड वाली जगहों पर तेजी से जा रही है। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। आरबीआई कभी भी बैंकों को नए कॉरपोरेट लोन रोकने का अचानक आदेश नहीं देता। ऐसा करने से आर्थिक विकास पूरी तरह रुक जाएगा। इसके बजाय बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे आक्रामक डिपॉजिट ड्राइव चलाएं और इस फंडिंग गैप को स्वाभाविक रूप से कम करें। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। आइए अब फंडिंग सब्स्टिट्यूशन और लिक्विडिटी बफर्स के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the impact of a high credit deposit ratio on a bank's funding substitution, profitability, and regulatory liquidity buffers. 1. To immediately bridge a widening credit deposit gap,
banks typically substitute lagging retail deposits by heavily issuing short-term wholesale market instruments like certificates of deposit. 2. A heavy operational reliance on short-term bulk wholesale funding significantly reduces the overall cost of funds, thereby expanding the bank's net interest margins. 3. Funding long-term corporate credit expansions with short-term wholesale market borrowings exposes the bank to severe asset-liability mismatch rollover risks. 4. Persistently pushing the credit-deposit ratio above the 80% mark forces banks to deplete their high-quality liquid assets, placing immense stress on maintaining the mandated liquidity coverage ratio. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 3 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए इसके कोर बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जब रिटेल डिपॉजिट्स कम आते हैं, तो बैंक अपनी क्रेडिट डिमांड पूरी करने के लिए फंडिंग सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। वे मनी मार्केट से पैसा उठाने के लिए सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी जैसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भारी मात्रा में इशू करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है, लेकिन इसका प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। होलसेल मार्केट से लिया गया पैसा बहुत महंगा होता है। यह कासा डिपॉजिट्स की तरह सस्ता नहीं होता, जिससे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM तेजी से सिकुड़ने लगता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि यह मार्जिन को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। इसके अलावा अगर बैंक 6 महीने की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का इस्तेमाल 5 साल के लंबे कॉर्पोरेट लोन के लिए करता है, तो यह एक बहुत बड़ा एसेट लायबिलिटी मिसमैच पैदा करता है। इससे भविष्य में रोल ओवर रिस्क काफी बढ़ता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। अंत में, जब बैंक का सीडी रेशियो 80% से ऊपर रहता है, तो बैंक के पास सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए लिक्विडिटी नहीं बचती। इससे उनके पास मौजूद हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स यानी HQLA कम होने लगते हैं, जिससे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने में भारी दबाव पड़ता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 भी पूरी तरह सही है। आइए अब FDI लिमिट्स और फॉरेन कैपिटल के इन पॉइंट्स पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करंट एंड proposed foreign direct investment limits in the Indian banking sector. 1. Under the existing regulatory framework, the foreign direct investment limit for public sector banks is strictly capped at 20%. 2. Interministerial consultations are actively evaluating a proposal to hike the public sector bank foreign direct investment ceiling to 49%, ensuring the government retains at least 51% strategic ownership. 3. Under the current consolidated policy, foreign investment in private sector banks is permitted up to 74% entirely under the automatic route. 4. Highlighting sustained global interest in India's financial sector, recent strategic capital inflows include Sumitomo Mitsui Banking Corporation investing in Yes Bank and Emirates NBD in RBL Bank. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C.
2 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इसके एफडीआई नियमों को समझते हैं। मौजूदा एफडीआई पॉलिसी के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंकों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की सीमा अधिकतम 20% तक ही सीमित है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। सरकारी बैंकों का एसेट साइज दोगुना करने के लिए सरकार में अभी एक प्रस्ताव पर सक्रिय चर्चा चल रही है। इस प्रस्ताव में इस एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49% करने की बात हो रही है। ऐसा करने से सरकार के पास कम से कम 51% की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप बनी रहेगी। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। यह एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई सिर्फ 49% तक ही अलाउड है। अगर बैंक में 49 से 74% तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वह पूरी तरह से सरकारी मंजूरी यानी अप्रूवल रूट के जरिए ही हो सकता है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अंत में ग्लोबल बैंक्स भारतीय वित्तीय बाजार में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके ताजा उदाहरण हैं जापान के एसएमबीसी द्वारा यस बैंक में इन्वेस्टमेंट और यूएई के एमिरेट्स एनबीडी द्वारा आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी लेना। इससे स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही साबित होता है। चलिए ग्लोबल रैंकिंग और इकोसिस्टम स्केल से जुड़े कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ बैंक्स बाय एसेट साइज एंड द करंट स्केल ऑफ इंडियाज कमर्शियल बैंकिंग इकोसिस्टम। 1. The government's broader macroeconomic objective is to elevate at least one Indian bank into the world's top 10 by asset size, a tier currently dominated by Chinese banks. 2. According to recent global banking metrics, the State Bank of India currently holds the 43rd position globally with an asset size of approximately $846 billion. 3. The Indian commercial banking ecosystem currently consists of exactly 21 public sector banks following the recent consolidation drives. 4. JP Morgan Chase from the United States holds the 5th position globally by asset size, immediately trailing the top 4 state-owned Chinese banks. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 1, 2, and 4 only. Option D. 2 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इन ग्लोबल रैंकिंग्स को समझते हैं। बिग बैंक रिफॉर्म्स का एक सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक उद्देश्य यह है कि कम से कम एक भारतीय बैंक को दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल किया जाए। इस टॉप टियर में अभी चीनी बैंकों का भारी दबदबा है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। हाल ही के S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI फिलहाल ग्लोबल लेवल पर 43वें स्थान पर है। इसका कुल एसेट साइज लगभग $846 बिलियन है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब समझते हैं
कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। भारतीय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में मौजूदा समय में 21 सरकारी बैंक नहीं है। 21 तो वह ऐतिहासिक संख्या थी जो बड़े मर्जर ड्राइव से पहले हुआ करती थी। अब भारत में सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही बचे हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो दुनिया के टॉप 4 सबसे बड़े बैंक चीनी हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना सबसे ऊपर है। इसके ठीक बाद अमेरिका का जेपी मॉर्गन चेस दुनिया में 5वें स्थान पर आता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है। चलिए क्रेडिट कार्ड मार्केट और स्पेंडिंग ट्रेंड्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the structural concentration and spending trends within the Indian credit card market as of early 2026. 1. The top 5 bank issuers control a massive 85.6% of the total credit card spending value, despite accounting for a comparatively lower share of roughly 74 to 75% of the total active cards issued. 2. State Bank of India and HDFC Bank operate as a dominant duopoly, collectively accounting for nearly half of the total transaction value, with HDFC Bank specifically holding a 28.4% market share. 3. Driven by a structural shift in payment behaviors, online transactions currently dominate the retail credit ecosystem, capturing exactly 61.8% of the total credit card spending value. 4. Capitalizing on recent regulatory relaxations, the market share of foreign banks in retail credit card spending has rapidly expanded to exceed 20%. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए भारत के क्रेडिट कार्ड मार्केट के इस कंसोलिडेशन को विस्तार से समझते हैं। जनवरी 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में टॉप 5 बैंक मिलकर पूरे स्पेंडिंग वैल्यू का 85.6% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। यह बैंकिंग एग्जाम का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू ट्रैप है। ये टॉप 5 बैंक कार्ड वॉल्यूम यानी एक्टिव कार्ड्स के मामले में सिर्फ 74 से 75% ही कवर करते हैं, लेकिन ग्राहक बड़ी खरीदारी के लिए इन्हीं पर भरोसा करते हैं। मार्केट में HDFC बैंक और SBI का एक बड़ा ड्यूओपोली यानी एकाधिकार बन चुका है। ये दोनों मिलकर लगभग आधा ट्रांजैक्शन वैल्यू होल्ड करते हैं। इसमें अकेले HDFC बैंक का मार्केट शेयर 28.4% हो गया है। वहीं SBI ने भी तेजी से अपना शेयर बढ़ाकर 24.7% कर लिया है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है। अब बात करते हैं खरीदारी के तरीके की। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का दबदबा सबसे ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड से होने वाले कुल खर्च का 61.8% हिस्सा सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से आता है। इसने ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल यानी POS स्वाइप्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। भारत के रिटेल क्रेडिट स्पेस में विदेशी बैंक तेजी से अपना बिजनेस समेट रहे हैं। उनका मार्केट शेयर गिरकर महज 4.5% रह गया है। इसके साथ ही RBI की सख्त पाबंदियों के कारण फिनटेक इश्यूअर्स भी मार्केट शेयर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें कोई नई छूट नहीं मिली है। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से गलत है।
चलिए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस यानी NUCFDC के प्राइवेट प्लेसमेंट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the Reserve Bank of India's recent regulatory exemption for the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited, NUCFDC, concerning private placements. 1. The NUCFDC, acting as the umbrella organization for over 1,400 primary urban cooperative banks, has been explicitly permitted to offer equity shares on a private placement basis to more than 200 persons in a financial year. 2. The regulatory exemption strictly mandates that the offer or invitation for these equity shares must exclusively be made to primary urban cooperative banks and the National Cooperative Development Corporation. 3. The entity must operate under a board-approved policy for resource planning that comprehensively covers both the planning horizon and the periodicity of the private placement. 4. Under these relaxed guidelines, the NUCFDC is permitted to invite subscriptions from retail investors and foreign portfolio investors to maximize capital mobilization. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1 and 2 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म को समझते हैं। NUCFDC भारत के 1400 से ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। रिजर्व बैंक ने इसे एक विशेष छूट दी है, जिसके तहत यह एक वित्तीय वर्ष में 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर्स ऑफर कर सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। आमतौर पर कंपनियों के लिए यह 200 की लिमिट एक पब्लिक इश्यू मानी जाती है, लेकिन NUCFDC के लिए यह अपवाद है। यह ऑफर सबके लिए नहीं है। इसे सिर्फ प्राइमरी UCB और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ही ऑफर किया जा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। इसके बेहतर मैनेजमेंट के लिए बोर्ड से अप्रूव्ड रिसोर्स प्लानिंग पॉलिसी होना अनिवार्य है, जो इसके पीरियोडिसिटी को कवर करे। इससे स्टेटमेंट 3 सही साबित होता है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है। RBI ने साफ किया है कि यह कैपिटल सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर से ही जुटाया जा सकता है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स या विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को शामिल करने की सख्त मनाही है। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। आइए अब ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस और कंप्लायंस टाइमलाइंस के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the operational restrictions and compliance timelines imposed on the NUCFDC regarding its exempted private placement of shares. 1. The Reserve Bank of India strictly prohibits the NUCFDC from extending any loan, advance, or other financial accommodation against the security of its own shares. 2. The proceeds of the share capital raised through this specific exempted route must be utilized strictly for purposes consistent with the core mandate of the NUCFDC. 3. Mandatory regulatory compliance requires the NUCFDC to submit a comprehensive quarterly statement detailing the subscriptions exclusively to the Securities and Exchange Board of India. 4.
The strict regulatory reporting timeline mandates that the quarterly statement regarding the equity raised must be submitted within exactly 15 days from the close of the respective quarter. Which of the statements given above are correct? Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इन ऑपरेशनल नियमों को समझते हैं। रिजर्व बैंक के 26 फरवरी 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार NUCFDC अपने ही शेयर्स की सिक्योरिटी पर कोई भी लोन या एडवांस नहीं दे सकता। यह बैंकिंग सुरक्षा के लिए एक सख्त नियम है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। साथ ही इस प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा जुटाया जाएगा, उसका इस्तेमाल सिर्फ इसके कोर मैंडेट यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के विकास के लिए ही किया जा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब कंप्लायंस की बात करते हैं। यह एक बहुत बड़ा अथॉरिटी ट्रैप है। NUCFDC को अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट सेबी को नहीं, बल्कि RBI के सेंट्रल ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को जमा करनी होगी। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। इस रिपोर्टिंग के लिए 15 दिनों की एक बहुत सख्त डेडलाइन दी गई है। क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के भीतर यह डेटा RBI तक पहुंच जाना चाहिए। इससे स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही साबित होता है। चलिए UPI बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the new biometric authentication framework introduced for Unified Payments Interface (UPI) transactions. 1. Biometric authentication, utilizing fingerprint or facial recognition, is strictly restricted to a maximum transaction threshold of ₹5,000, beyond which the manual entry of a UPI PIN remains mandatory. 2. Under the UPI two-factor authentication (2FA) architecture, device binding via SMS serves as the primary factor, while the native biometric hardware acts as the secondary authentication factor. 3. To ensure rapid ecosystem transition, the Reserve Bank of India (RBI) has mandated the automatic default activation of biometric authentication for all eligible Android users. 4. The biometric verification process is executed entirely on the device's secure hardware layer to mitigate social engineering and PIN sharing frauds. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1, 2, and 4. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इसे बहुत ही डिटेल में समझते हैं। फरवरी 2026 के रोल आउट के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करके यूपीआई कस्टमर्स अब सिर्फ 5,000 रुपए तक के पेमेंट्स को ऑथराइज कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन 5,000 रुपए से ऊपर का है तो आपको पारंपरिक यूपीआई पिन डालना ही पड़ेगा। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह सही है। अब यूपीआई के 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन मॉडल की बात करते हैं। इसमें एसएमएस के जरिए डिवाइस बाइंडिंग पहला फैक्टर होता है।
और डिवाइस का नेटिव बायोमेट्रिक हार्डवेयर अब पिन की जगह दूसरा फैक्टर बन गया है, जिससे स्टेटमेंट 2 भी गणितीय रूप से सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। आरबीआई और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार यह बायोमेट्रिक फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसे बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, बल्कि यूजर को खुद इसे ऑप्ट इन करना पड़ता है। इसके अलावा यह पूरी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपके फोन के सुरक्षित हार्डवेयर लेयर पर होती है, ताकि पिन शेयरिंग और सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स को रोका जा सके। इसलिए स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है। एक और जरूरी पॉइंट नोट कर लीजिए, प्राइवेट फिनटेक कंपनी फोनपे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इस फीचर को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इन सब कारणों से ऑप्शन ए ही एकमात्र सही उत्तर बचता है। आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त होता है। हमने बैंकिंग नॉलेज मास्टर क्लास 5 आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस प्रमोशन एग्जाम्स को डिटेल में कवर किया है। एग्जाम रेडीनेस के लिए इन सभी रेगुलेटरी अपडेट्स और लिमिट्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगले सेशन में हम कुछ नए बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज